My dear students, welcome to Physics Nerds. This is the problem 1.7 IE Rado book. Two swimmers leave point A on one bank of the river to reach point B lying right across on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB while the other swim at right angle to the stream and then walk the distance that he had been carried away by the stream to get point B. What was the walking velocity u so that both reach the destination simultaneously? Water velocity is given here 2 km per hour and velocity of each swimmer is equal, that is 2.5 km per hour. This is the question. So in this question we have to discuss river and boat situation. First of all, you students, you must know river and boat situation before going in detail of this question. Okay, this is very challenging question and very interesting problem, my dear students. और ये एक प्रॉब्लम ऐसी है वीरोडोव की 1.7, खाली ये एक प्रॉब्लम कर लो, ओनली दिस वन प्रॉब्लम, तो आपके रिवर एंड बोट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मुझे भी पहले आप बच्चों को रिवर एंड बोट सिचुएशन डिस्कस करनी पड़ेगी. ओके, फर्स्ट आई विल डिस्कस रिवर एंड बोट सिचुएशन बिफोर in going in detail of this problem 1.7 of IE Irodov. 1.7 problem of the book, very interesting problem. Okay, तो देखिए सबसे पहले मुझे रिवर एंड बोट सिचुएशन डिस्कस करनी होगी. रिवर एंड बोट सिचुएशन, बेटा रिवर एंड बोट सिचुएशन देयर आर टू केसेस और दिस इज नॉट द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरा ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद आप कोई भी रिवर बोट सिचुएशन ऐसे हल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे. तो रिवर एंड बोट सिचुएशन, this is the case of dependent velocity, not relative velocity first, because here boat dependent on surface of water. Relative velocity का केस कब होता है? when both the particles move independently. Here boat is dependent on water. Okay, so river and boat situation, my dear students, first of all I am going to discuss river and boat situation in detail before solving this problem. So case 1, if boat is moving along downstream, velocity of water, this is velocity of water, this is velocity of a boat, both are going in same direction, then what is the net velocity? Velocity of boat plus velocity of water. एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया टी टाइम में, तो व्हाट इज फार्मूला, व्हाट इज टाइम टेकन टू कवर एस डिस्प्लेसमेंट? एस ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर. ओके, केस 1. केस 2, केस 2, मैं पहले बोट रिवर एंड बोट सिचुएशन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, फिर इसकी बात करूंगा. मान लीजिए यह हमारा बोट है मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो. सो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट बिकम वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर. एंड व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर एस डिस्प्लेसमेंट? से दिस टाइम इज t1, दिस टाइम इज t2. सो दिस इज distance displacement over net velocity, that is velocity of boat minus velocity of water. Sometime in any another problem, not in this problem, a formula may be used. What is total time taken to go
downstream and then move upstream by the boat. So total time taken for upstream and downstream journey is S over VB plus VW प्लस S ओवर VB माइनस VW। तो एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा VB स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर और 2S और VB, ये आंसर आएगा। दिस इज टोटल टाइम टेकन एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइम इज मोर देन time taken in still water for going and coming up. Okay, this time is more than that time. Okay, these two cases. Now case number 3. The name of this case is shortest distance situation. Now I am coming to this problem. Shortest distance situation. See, in this question, two swimmers leave point A on one bank of the river to reach point B lying right across on the other bank. One of them crossed the river along straight line path AB. So, one of them crossed the river along straight line path AB. So, it means shortest distance situation. Say A, 2A, swimmer A. Swimmer A is crossing the river along shortest distance situation. Okay, shortest distance situation के जितने और भी केसेस बनेंगे मैं पहले उन सबको डिस्कस कर दूं। मेरा टारगेट ये है बच्चों, इराडो प्रॉब्लम के माध्यम से मैं आप लोगों को उस टॉपिक की थारो नॉलेज दे सकूं। मेरा टारगेट खाली ये प्रॉब्लम डिस्कस करना नहीं है, ऐसी 100 प्रॉब्लम डिस्कस करना है। आप एक प्रॉब्लम करोगे तो ऐसी 100 प्रॉब्लम आप ऐसे चुटकियों में हल करने लगोगे, विश्वास रखिए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स लिसन, दिस इज द रिवर flowing in this direction. Say VW is the velocity of water and there is a person here having his boat, yeah, maybe swimmer himself, and thinking what to do. What is the problem? He want to reach here directly to point B. A से चल के और सीधा B पॉइंट पे आउट होना चाहता है, बिल्कुल ठीक सामने। दिस इज द आउट पॉइंट। वो सोच रहा है क्या करूं यार, कैसे करूं। अगर क्यों, प्रॉब्लम क्या है उसके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है, अगर वो ऐसे चलेगा डायरेक्ट तो वाटर का फ्लो उसको अपने साथ ले जाएगा, यहां जाके निकलेगा। और अगर वो ऐसे चले तो ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं, सीधा चल नहीं सकता, सीधा चलेगा तो पानी उसको खींच ले जाएगा। तो उसको चाहिए थोड़ा ऐसे चले, अगेंस्ट द फ्लो। तो देखो, मैं एक हाथ से इस पेन को इधर को धक्का दूंगा और इस हाथ से इधर को दूंगा, दोनों को देखो ऐसे जाएगा। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट। अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा उसको, एंगल थीटा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, वेक्टर के केस में मेक वेक्टर डायग्राम एंड देन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय ज्योमेट्री। दिस इज अलाउड, यस अलाउड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नेट वेलोसिटी। अल्टीमेटली ही कम आउट फ्रॉम हियर एंड एस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर। ओके, ज्योमेट्रिकल डायग्राम बन गया। नाउ सॉल्व बाय ज्योमेट्री। तो व्हाट इज नेट वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट्स? यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट नेट वेलोसिटी। सो नेट वेलोसिटी बिकम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, √VB स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। अगर कहीं पर शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस सिचुएशन हो, डायरेक्ट ये फार्मूले यूज कीजिए। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो ये डिस्टेंस लीजिए, यही वेलोसिटी लीजिए। याद रखना जो डिस्टेंस लोगे वही वेलोसिटी लेना है। एस अपॉन नेट वेलोसिटी, तो इट इज एस अपॉन अंडर वी बी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर। दिस इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। नंबर 3, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, व्हाट इज साइन थीटा। देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा इज द बेस्ट एंगल। व्हाट इज साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट। एंड रिमेंबर इफ साइन थीटा इज लेस देन 1, क्योंकि साइन थीटा मस्ट बी लेस देन 1 या इक्वल टू 1, ओनली देन दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आप इसको बोलो भाई साहब को कि आप चले जाओ, ये आपके लिए संभव नहीं है। ओके, सो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिचुएशन हो कहीं पर तो ये 3 फार्मूले लगाने हैं बस। और यहां पे स्विमर ए ने क्रॉस किया रिवर को अलोंग शॉर्टेस्ट लाइन, सो दिस इज द टाइम टेकन बाय स्विमर ए टू क्रॉस द रिवर। ओके, नाउ this is the case study of shortest distance situation, and here swimmer A. Now for swimmer B, let us study for swimmer B. Swimmer B, what he says, while the other swimmer swim at right angle to the stream, this case is known as shortest time situation. So I am going to discuss it here. I am discussing here shortest time situation. Time situation. And the situation faced by swimmer B. मैं बी स्विमर की बात कर रहा हूं बच्चों। पानी इधर बह रहा है, वाटर वेलोसिटी, और यहां पे आपका बी स्विमर बैठा है। वो चाहता है कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना। तो बच्चों स्विमर कह लो, बोट कह लो, जो भी है, अगर तो इधर जाएगा, अगेंस्ट द फ्लो जाएगा, तो देखो जरा इधर उसकी नेट वेलोसिटी में माइनस आ गया। नेट वेलोसिटी डिक्रीज, सो टाइम टेकन इंक्रीज। और अगर ये इधर जाए तो पानी अपने साथ ले जाएगा बहुत दूर खींचकर, तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऐसे चले तो भी टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि पानी अपने साथ ड्रिफ्ट करके ले जाएगा। ऐसे चले तो स्पीड कम हो जाती है, तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। याद रखना, अगर किसी रिवर को कम से कम टाइम में क्रॉस करना है तो करंट के परपेंडिकुलर फ्लो करना पड़ता है। सो boat must move, या swimmer must move in this direction. This is the velocity of boat. I am saying it boat, okay? Boat, yeah, because a very famous boat river situation या swimmer river situation. So जहां कहीं मैं boat बोल रहा हूं, आप swimmer सोचना। अच्छा बच्चों, क्या होगा अब? ये जाएगा तो ऐसे, मैं देखो एक हाथ से अपने पेन को ईमानदारी से, ऑनेस्टली, एक हाथ से पेन को ऐसे चलाऊंगा, एक हाथ से ऐसे धक्का दूंगा पानी के जैसे, तो ये एक हाथ से ऐसे चलेगा, लेकिन पानी इसको ऐसे ले जाएगा, दोनों यहां जाके आउट होगा। तो ये हुआ नेट वेलोसिटी, और ये हुआ बच्चों वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये एंगल हुआ थीटा। ओके, इस सिचुएशन को कहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम सिचुएशन, and either another name is
व्हेन बोट या स्विमर स्विम राइट एंगल टू द फ्लो, राइट एंगल टू द करंट, राइट एंगल फ्लो या स्विम राइट एंगल टू वाटर करंट। ज्योमेट्रिकल डायग्राम बन गया। अब सिचुएशन को ज्योमेट्री से कर लो। ओके, व्हाट इज थीटा एंगल हियर? टेंजेंट थीटा बेस्ट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट, इतने एंगल पे वो आउट होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, व्हाट इज ये नेट वेलोसिटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर स्क्वायर, दिस इज द नेट वेलोसिटी, अंडर रूट वीबी स्क्वायर प्लस वीडब्ल्यू स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, what is time of crossing? That is time taken by person B while the other swimmer, कौन? B, move at right angle to the stream, मतलब B की बात हो रही है। What is time taken by B? बेटा जो डिस्टेंस लेना है वही वेलोसिटी लेनी है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वेलोसिटी है VB, VB is the velocity of swimmer here, VB may be the velocity of boat, may be the velocity of swimmer. Okay, तो here time of crossing हो जाएगा S upon VB. And third thing, fourth thing, drift. What is the drift X? तो बच्चों this is the drift. drift मतलब पानी अपने साथ कितनी दूर खींच के ले गया चलते चलते। तो यहां पर अब आप लोग वो वाला फार्मूला लगाएं, ज्योमेट्री से कर लो। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? डिस्टेंस वाइज लगाओ x अपान s, और वेलोसिटी वाइज vw अपान vb। तो व्हाट इज x फ्रॉम हियर? ड्रिफ्ट x, इट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर अपान वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू s। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर ऐसे बोले, बोट, स्विमर, बॉय, गर्ल, शिप, कोई भी मूव परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम सिचुएशन। और उसमें 4 फार्मूले लग सकते हैं, एंगल, नेट वेलोसिटी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ड्रिफ्ट। और अगर कोई बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग मूव करना है, तो ये 3 फार्मूले हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। मैं आउट ऑफ क्वेश्चन जाके आपको समझा रहा हूं कि और ऐसे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं। अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। लेट अस कम टू दिस सिचुएशन। सो यहाँ पे मैं जो फालतू चीज़ें वो हटा देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, और ये मैं समझा ही चुका हूँ, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मैं अपना प्रॉब्लम डिस्कस करूँ। दिस इज द टाइम टेकन बाय ए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है? टाइम टेकन बाय ए है s ओवर अंडर रूट वीबी स्क्वायर माइनस वीडब्ल्यू स्क्वायर। अब आप कहानी सुनो, ये इधर जा रही है पानी वीडब्ल्यू स्पीड से, और 2 लोग हैं ए और बी, बोट में हैं, चलो ये स्विम कर रहे हैं। उनकी वेलोसिटी का नाम मैंने रखा है वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब कहानी ये है, ए कहता है कि भैया मैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग जाऊंगा, बी कहता है मैं शॉर्टेस्ट टाइम के अलोंग जाऊंगा। समझ रहे हो? ए क्या कहता है? मैं और मिलना यहां है एकदम सामने, दोनों को मिलना है। तो कौन पहले पहुंच गया? बी। अब जो बी है ये यहां निकल गया, अब इसके पास कुछ टाइम बचा। ए अभी क्रॉस कर रहा था, बी के पास कुछ टाइम बच गया डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। कितना टाइम बच गया? टाइम टेकन बाय बी
टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी, इतने टाइम में इस बंदे को यूनिफॉर्म स्पीड से आना है, जीरो एक्सेलरेशन से आना है, यूनिफॉर्म स्पीड से आना है। और व्हाट वाज द वॉकिंग वेलोसिटी, बताओ ये कितनी स्पीड से मूव करे, वॉकिंग वेलोसिटी निकालनी है इसकी, कि दोनों यहां पर इस डेस्टिनेशन पे इकट्ठे मिले। मैं डेस्टिनेशन का नाम चेंज कर देता हूं, चलो एक्स वाई, दोनों एक्स से चले, पर क्वेश्चन में ए बी लिखा है तो मैं ए बी ही रख देता हूं। दोनों लोग ए से चले बी पे इकट्ठा होना है। दोनों लोग कौन कौन है जी, एक तो बंदा ए है, एक बी है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग आ रहा है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। ये शॉर्टेस्ट टाइम के अलोंग आ रहा है, इसको कम टाइम लगेगा। तो ये जो बी है ना, ये थोड़ा पहले पहुंच गया, ए से पहले पहुंच गया, तो इसके पास कितना टाइम बचा है, टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी। इतने टाइम में इस बंदे को, बी को यहां आना है ताकि दोनों इकट्ठे मिल जाएं। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये ड्रिफ्ट है, पानी जितना अपने साथ खींच के ले गया, ये इसका फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू एस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां पे हमें एस डिस्प्लेसमेंट, चलो देखते हैं क्या गिवन है। टू स्विमर लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर, रीच पॉइंट टू पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक, वन ऑफ देम क्रॉस द रिवर अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अदर स्विम बी एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम, मतलब shortest time, and then walk the distance that he had been carried away by the stream to point B. What was the walking velocity so that both reach the destination simultaneously? The stream velocity, इसका मतलब ऐसा नहीं गिवन। तो बच्चों कभी ऐसा नहीं करते कि कोई डाटा ना गिवन हो और आप क्वेश्चन रोक दो, ऐसा कभी नहीं करते। एग्जामिनर ने भी तो किया होगा, सपोज कर लीजिए राजनेता बनिए, राजनेता क्या करते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए भी राजनेताओं वाली चालें चलनी पड़ती हैं। कैसे भाई, अब जैसे यहाँ पे एस नहीं गिवन, तो पहले इसको सपोज कर लो, जो नहीं गिवन डाटा उसको बेचारे को सपोज कर लो, उसको बहुत सम्मान दो, सम्मान के साथ लेके आओ, सपोज करो, फिर उस डाटा का खूब यूज करो, और फिर एज ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन जब फाइनल रिजल्ट आए हैं उससे पहले उसको गोली मार दो, मतलब एलिमिनेट कर दो। यही करते हैं फिजिक्स में भी। तो अगर ऐसे नहीं गिवन तो घबराइए मत, ऐसे को सपोज कर लीजिए, हमें पूरी उम्मीद है ये उड़ेगा, है उड़ जाएगा। तो बच्चों जो ये बी बंदा है, ये एक्स ड्रिफ्ट अवे यहाँ पहुंच गया था, और इसको ये डिस्टेंस ऐसे वॉक करते हुए आना है। ओके, तो बड़ा सिंपल फार्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन तो है नहीं इसकी, सिंपल फार्मूला x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज x अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज x बेटा, वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू s, और टाइम टेकन बाय a, टाइम टेकन बाय a वो है s अपॉन अंडर द रूट vb स्क्वेयर माइनस vw स्क्वेयर, और टाइम टेकन बाय b s अपॉन वेलोसिटी ऑफ b, b फॉर बोट, हियर b फॉर बोट या स्विमर, हियर इन दिस क्वेश्चन vb इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर या बोट, whatever you want to say it, और VW is the velocity of water। तो बच्चों ये देखो, यहां से आप U निकाल सकते हो, U इक्वल टू हुआ वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू S, ये S कैंसल हो चुका है, ओवर, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 2, वेलोसिटी ऑफ बोट 2.5, 1 रूट वेलोसिटी ऑफ, ये VB है हमारा, ये VB है 2.5 स्क्वायर
-2 square -1/VB, व्हाट इज VB? 2.5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो this is the river and boat situation and the most challenging question based upon river and boat। ऐसा क्वेश्चन आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलने वाला, जिसमें सारा सिचुएशन घूमेगा। असल में क्या फर्क है बच्चों, जो जेई मेन है या मेडिकल लेवल है उसमें खाली सिंपल सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2 पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो जेई मेन है, एडवांस है, उसमें सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 इनको एज ए बेसिक फंडा यूज करके बड़ा क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि ये है। दिस इज द डिफरेंस। तो धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए मेरे उत्साह के लिए। अरे जब कोई कलाकार बढ़िया काम करता है तो क्लैपिंग करते हैं ना, तो आप मेरे लिए सब्सक्रिप्शन रूपी क्लैपिंग कीजिए। मुझे आज आपके सब्सक्रिप्शंस की, लाइक्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।